Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is ulemas. Ulemas are also known as Ahem-e-Kalam or the men of the pen. So, ulemas are the Muslim theologians or scholars and administrators, and they collectively known as the ulema. Okay, so ulemas are quite an important one, and even they constituted the brain of the sultanate. Okay, they constituted the brain of the sultanate. On the other hand, ये जो उलेमास हैं एक अदर ग्रुप ऑफ मैन से जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट थे, दे आर नोन एज द उमरा. सो उलेमास जो हैं दे आर नोन एज द अहम ए कलम मैन ऑफ द पेन. ऑन द अदर हैंड जो उमरास ग्रुप ऑफ द पीपल थे दे कैन बी रिफर्ड एज द स्वॉट आर्म. ठीक है, ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया. अच्छा, ये जो उलेमास होते थे दे वर मोस्टली नॉन टर्किश इन देयर ओरिजिन. नॉन टर्किश इन देयर ओरिजिन. ठीक है, जो बोथ अरेबिक along with the Persian theologians, both Arabic along with the Persian theologians and the intellectuals, they occupied a predominant positions among them. Okay, at the same times they held a firm hold over the missionary organs of the Islam. They also controlled the mosques, kanhaks, along with the educational institutions, that is the madrasas or the maktabs, along with the holy shrines. ओके, तो ये जो उलेमास थे ये सब का इनके ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब इंस्टीट्यूशन के ऊपर इनका कमांड रहता था और होल्ड रहता था. ओके, अच्छा, ये जो मोस्ट ऑफ द जो उलेमास होते थे दे वर बिलोंग टू द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज द सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट. सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, and at that time they are considered the orthodox in nature. Okay, orthodox in natures. At the same time जो सादर उस सादुर था, that is जो minister in charge of सादर क्या है, that is the minister in charge of the ecclesiastical department, that is the religious, related to the religious departments, along with the religious endowments. Okay, religious endowments. On the other hand, जो काजी उल कुजात होते थे they are the chief justice. Okay, so they are the chief justice. They usually acted as a spokesman of the ulema. जो काजी उल कुजात होते थे, जो chief justice होते थे, they usually acted as a spokesman of the ulemas and were treated as the representatives by the ulemas. ठीक है, तो ये जो काजी उल कुजात जो होते थे they were the representatives and the spokespersons of the ulemas. Okay, ये जो ulemas हैं they exercised a great influence. ठीक है, वो अपना great influence बना के रखते थे on the policies. ठीक है, जो भी पॉलिसीज स्टेट बनाता था along with the other functions of the state.
ओके उनका होल्ड काफ़ी रहता था और उनका जो इन्फ्लुएंस रहता था वो जो पॉलिसीज और जो स्टेट का फंक्शन होते थे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. ओके बिकॉज ये जो उलेमास थे दे इंटरप्रेटेड द इस्लामिक लॉ, वो इंटरप्रेट करते थे इस्लामिक लॉ एंड रिगार्डेड देमसेल्फ एज द स्पिरिचुअल गार्जियंस. ठीक है, स्पिरिचुअल गार्जियंस ऑफ द इस्लामिक स्टेट. ओके so they treated themselves as a spiritual guardians of the Islamic state. At the same time, due to all these, उनकी जो पावर थी और जो प्रेस्टीज थी, ड्यू टू विच दे इंजॉयड, ठीक है, सो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज करते थे, सो दे गेट इमेंस रिस्पेक्ट along with the prestige among the Muslim masses, and because of their popular appeal they demanded the attention of the Sultan along with the nobility alike. Okay, attention of the Sultan along with the nobility. ओके सो जो सुल्तान होते थे, सुल्तान ऑलवेज फेल्ट ऑब्लाइज्ड इन ऑर्डर टू ट्रीट देम विद द डेफरेंस. ओके सो इवन द जो मोस्ट पावरफुल, अगर हम मामलिक सुल्तान की अगर बात करें, दैट इज द बलबन, गयासुद्दीन बलबन, इवन ही हैड टू ओबे देम whom? Obey ulemas in the pursuit of the state policy and keep them in the good humor. Okay, so कैसे उनको रखा जाता था गुड ह्यूमर में, और बेसिकली उनको कैसे मीन्स उनको अपीज किया जाता था. सो बाय एक्सटेंडिंग द लिबरल स्टेट पैट्रोनेज टू देम, दैट इज बाय ग्रांटिंग लिबरल स्टेट पैट्रोनेज. ओके सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता था, ड्यू टू ऑल दिस इन्फ्लुएंस एंड द पावर, उलेमास ऑलवेज टेंडेड टू डोमिनेट द स्टेट पॉलिटिक्स. ठीक है, इतना जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शनरीज होते थे, सो उलेमास हमेशा क्या चाहते थे, दे ट्राई टू डोमिनेट द स्टेट पॉलिटिक्स. ठीक है, अच्छा हमेशा वो चाहते थे डोमिनेट द स्टेट पॉलिटिक्स, बट समटाइम्स क्या होता था, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर्स और जो स्ट्रॉन्ग, अगर हम सल्तनत की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग रूलर सल्तनत पे बैठे हैं, आइदर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, या फिर बलबन की, ऑल्दो वो रिस्पेक्ट तो करते थे इस इंस्टीट्यूशन को, उलेमास को, बट एट द सेम टाइम्स वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे और वो स्ट्रिक्टली उनको एडवाइस दिया जाता था, दैट इज स्ट्रिक्टली एडवाइस देते थे कि उलेमास को यू हैव टू परफॉर्म योर फंक्शंस इन द रिलीजियस अफेयर्स, यू डोंट अलाउ टू इंटरफेयर इन द स्टेट पॉलिटिक्स. सो जब तक कोई पावरफुल एम्परर थ्रोन पे बैठा रहता था, तब तक इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द उलेमास टू डोमिनेट द स्टेट पॉलिटिक्स और द स्टेट अफेयर्स. बट एज सून एज एनी वीक or the orthodox sultan sat on the throne, it was quite easier for the ulemas to dominate the state affairs. One such example है फिरोज शाह तुगलक. लोग फिरोज शाह तुगलक sat on the throne after the मोहम्मद बिन तुगलक, और उनको अपना मीन्स थ्रोन पे आने के लिए और उनको अपनी लेजिटिमेसी जाने के लिए he used to do several of the things. Among them कुछ चीज़ें थी. First of all, to appease the ulemas. So to appease the ulemas, used to adopt the शरीयत लॉ. ठीक है, used to rule as per the शरीयत लॉ. और हम एक अगले टॉपिक करते हैं, दैट इज द जजिया. पोल टैक्स कर चुके हैं. एज वी विल नो, जो फिरोज शाह तुगलक थे, ही used to impose the जजिया even on the ब्राह्मण्स for the first time.
और ये सब जो मेजर्स थे इन ऑर्डर टू अपीज द उलेमास टू गेन द सपोर्ट, ठीक है, तो उनको लेजिटिमेसी के लिए अपना चाहिए होता था. सो दिस टाइप ऑफ रूलर दैट इज द ऑर्थोडॉक्स सुल्तान अलॉन्ग विद सम वीक सुल्तान जब भी बैठते थे तो इट वॉज क्वाइट इजियर फॉर द उलेमास इन ऑर्डर टू डोमिनेट द स्टेट पॉलिटिक्स और द स्टेट अफेयर्स. ओके, अच्छा, जो रूलिंग एलीट होते थे ऑफ द सुल्तनत, ठीक है, ये जो उलेमास हो गए या फिर उमरा हो गए, सो दे वर एक्सट्रीमली कॉशियस होते थे, सो अपने सोशियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपनी पावर लॉस कर देंगे कहीं ना कहीं. सो एट द सेम टाइम्स ड्यू टू दिस ऑल ये jealously safeguarded they all their privileges, that is their privileges, high privileges जो कि given by the state, ठीक है. एट द सेम टाइम्स जो उन्होंने सल्तनत में जो सुल्तान ने उनको दी हैं. ओके, एट द सेम टाइम दे डिड नॉट इवन टॉलरेट जो इंडियन कन्वर्ट्स होते थे टू द इस्लाम्स अलॉन्ग विद सम अदर मुस्लिम्स, those are belong to the non-privileged class should claim a status of the social or the political equality with them. So वो अपनी jealously safeguard करते थे अपनी जो भी privileges स्टेट ने उनको ग्रांट की हैं. एट द सेम टाइम्स जो हिंदूज होते थे और जो बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स होते थे और अदर मुस्लिम्स होते थे, दोज आर बिलोंग टू द नॉन प्रिविलेज क्लासेस, जो कि वो इंश्योर करते थे ये उलेमास और जो बेसिकली जो इलीट क्लास था, रूलिंग इलीट क्लास था, कि उनकी स्टेटस तक वो लोग ना पहुंच पाएँ, ठीक है. तो इसके लिए वो काफ़ी चीज़ें करते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द उलेमास. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ गुड डे.